till now we had discussed the early medieval India, right? After that we discussed the Delhi Sultanate, and after that we discussed the Mughal period, right? As far as the political chronology is concerned, the discussions have been done, right? उसके बाद जो यहाँ पर दो आपकी 7th क्लास एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स आते हैं, they are more or less concerned to, you can say, the economic aspects, the miscellaneous aspects, the cultural aspects, plus how when the medieval period was ending, तब क्या developments हो रही होती है, right? So that we can make a transition into the modern period, right? So the 5th chapter is about the tribes, the nomads, and the settled communities, right? So outside of the social system which you are envisioning with the core दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड, राइट, उसके अलावा भी वहां पर देयर वुड बी सर्टेन ट्राइब्स, सर्टेन नोमैडिक कम्युनिटीज, सर्टेन सेटल्ड कम्युनिटीज। वो कैसे जीते थे, उनके क्या फीचर्स थे, राइट? एंड दे हैव एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ टू एग्जांपल्स, द गोंड्स एंड द अहोम्स, राइट? फर्स्टली ट्राइबल्स वैसे भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। तो इन दिस चैप्टर योर फोकस शुड बी वन ऑन अंडरस्टैंडिंग कि भाई बोल क्या रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है? सो दैट इफ दे आस्क यू कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अब वहां पर फ्रेम ना हो जाए, ठीक है, आप वहां पर ट्रबल ना हो जाए। Secondly, it should be about remembering the various tribes which have been mentioned in this chapter, right? So you saw in the chapters 2, 3, 4 how kingdoms rose and fell, new arts, crafts, and production activities flourished. Political, socio-economic development had happened, but social change was not the same everywhere because different kinds of societies evolved differently. It is important to understand how and why this happened, right? Society was already divided according to the rules of Varna. ये ancient period में established हो चुका था, plus this has been continued at least in the Hindu fold till at least in the Hindu fold even after the ancient period, right? The difference between the high and the low, it had increased during the Delhi Sultanate and further during the Mughal period. Under the Delhi Sultans and the Mughals, this hierarchy between the social classes even grew further. बियॉन्ड बिग सिटीज द ट्राइबल सोसाइटी। तो अभी तक हमने जिन आम लोगों की बात की, या फिर हम कह सकते हैं कि जो एम्परर के साथ रहते थे, जो कॉमन पीपल, नोबिलिटी एंड ऑल दीज थिंग्स, उनके अलावा एक क्लास थी द ट्राइबल, जिसकी नॉर्मल डिस्कशन में हम बात नहीं करते, तो उनके बारे में भी थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि विद टाइम इवन दे हैड डेवलप्ड सर्टेन किंगडम्स, ठीक है? There were, however, other kinds of societies as well. They did not follow the social rules prescribed by the Brahmins. आज भी हमें पता है, even in the tribal society, even today in the tribal societies, हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये कास्ट सिस्टम वो फॉलो करते हैं, ये कास्ट सिस्टम वो फॉलो करते हैं, ये रूल्स वो फॉलो करते हैं। They have their own kinship based rules, family and community oriented rules, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? एंड दिस इज ट्रू इवन टुडे, एंड मोर और लेस चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, वहां पर ये और भी ज्यादा सच है। यस, इन द सेंट्रल इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रेजुअली द ट्राइबल सोसाइटी इज गेटिंग, यू कैन से समवॉट, इसको कहते हैं संस्कृताइज्ड, या फिर समवॉट इट इज एस्टैब्लिशिंग सम सिमिलैरिटीज विद द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। So these societies did not follow the social rules prescribed by the Brahman, nor were they divided into numerous unequal classes. Such societies are often called as tribes. Members of each tribe were united by kingship bonds. Okay, you can say blood bonds, community bonds. Many tribes obtained their livelihood from agriculture. They could be either hunter-gatherers or herders. Most often, they combined these activities and they made full use of natural resources. You all know कि ये सब tribal society के features हैं, right? आज भी अगर हम shifting cultivation को example लेकर देखें, ठीक है, तो it can fit very well into this, ठीक है? Plus हमें पता है tribal societies, they can be hunter-gatherers, they can be herders, ठीक है, and they make maximum use of the natural resources. Some tribes were nomadic and moved from one place to another. A tribal group controlled land and pastures jointly and then divided them. ठीक है, तो टोटल वो होगा और उसके बाद वो फर्दर उसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? Many large tribes thrived in forests, hills, deserts, and places, and they clashed with the more powerful caste-based societies.
In various ways, the tribes retained their freedom and preserved their separate culture. But the caste-based and the tribal societies also depended on each other. So आप ये कह सकते हैं, अगर ये caste-based society है, tribal-based society है, तो ये एक दूसरे के साथ clash भी करते थे, ठीक है, और ये एक दूसरे के ऊपर co-dependent भी थे, right? So it was a relationship which was characterized by conflict and dependence, causing both the societies to change. In this sort of interaction of conflict and dependence, both societies changed. ठीक है. Who were the tribal people? यहाँ पर ये describe किया हुआ है. Tribal people did not keep the written records. They preserved rich customs and oral traditions. They passed them down to the new generations. ठीक है. यहाँ पर आपको दिखने में ये बड़ा सिंपल लगेगा, बट आप ध्यान से देखिए, जो ऊपर वाले पैराग्राफ में बताया गया, जो नीचे वाले पैराग्राफ, मतलब ये जो 3 लाइनें बताई गई है, these are features of the tribal society, right? The very basic features of the tribal society. एंड इनको हम यूजुअली इग्नोर करते जाते हैं कि यार ये तो पता ही है, पता ही पता है, लास्ट में जाते जाते ये हमें याद नहीं रहती चीजें. प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है आपसे डायरेक्ट सवाल. एंड द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज, यूपीएससी ने मेंस में ये सवाल पूछा हुआ है. मेंस में क्या पूछा था कि हाउ द ट्राइबल नॉलेज सिस्टम डिफर्स फ्रॉम द मेन स्ट्रीम नॉलेज सिस्टम. ठीक है, वहां पर ये सवाल बड़ा मुश्किल लगता है एंड हम सोचते हैं पता नहीं कहाँ से उठकर आ गया ये सवाल. बट अगर आपने ट्राइबल सोसाइटीज को समझा है फ्रॉम द बेसिक, दैट क्वेश्चन वुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. दैट इज व्हाई डूइंग एनसीईआरटीज इज ऑफ utmost importance, right? Tribal people are found in almost every region. The area and influence has varied, varies today. ठीक है, स्पेशल वेरिएशन, टेम्पोरल वेरिएशन, वो सब चीजें चलती रहती हैं. सम यहाँ पर आपका मान लो दिस इज द प्रीलिम्स मटेरियल. ठीक है, ये आपको प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में सारे याद करने पड़ेंगे. ठीक है, द बेस्ट वे इज मैप लो, प्लॉट करते रहो, मैप लो, प्लॉट करते रहो. ठीक है, एक मैप आपका ट्राइब्स का बन जाना चाहिए. ठीक है, प्लस जो एनसीईआरटी में जो मैप्स दिए गए हैं उनको आप अपने उस वाले फोल्डर में डाल दो. Some powerful tribes control large territories. In Punjab, the Khokhar tribe was very influential. इस खोखर ट्राइब की बात भी हुई थी जब हम बात कर रहे होते हैं कि पंजाब में महमूद ऑफ गजनी और ये सब जो अटैक कर रहे होते हैं, तो खोखर ऑल्सो प्रेजेंटेड अ सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस एट दैट टाइम. ठीक है, ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी. बाद में भी ऑब्वियसली जब मंगोल्स वगैरह भी अटैक करते हैं, इट्स सॉरी महमूद ऑफ गजनी के टाइम नहीं, लेकिन मंगोल्स के टाइम. एंड लेटर द गखर्स, ठीक है, बिकेम इम्पोर्टेंट. तो खोखर एंड गखर, द ट्राइबल सोसाइटीज ऑफ द पंजाब, इनके जो बंदे का नाम था दैट वाज कमाल खान गखर. एक बार गखर आपको पता है, बस याद रह जाए. ठीक है, हु वाज अ नोबल मनसबदार मेड बाय एम्परर अकबर. इस टाइप के फैक्ट्स यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकता है. व्हाई? 3 कारण है उसके. नंबर 1, ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है. नंबर 2, ट्राइब्स एज अ टॉपिक यूपीएससी को पसंद है. लेकिन नंबर 3, अकबर एज अ टॉपिक यूपीएससी को बहुत पसंद है. ठीक है, तो यूपीएससी कैन सिंपली आस्क, गिव अ स्टेटमेंट कि one of the important tribes, the Gakhar tribes, its chief was made as a mansabdar by Emperor Akbar. ठीक है, इस टाइप के स्टेटमेंट्स किसी तरीके से भी, जिस तरीके से यूपीएससी घुमाना चाहे उसको घुमाकर दे सकता है, राइट. देन फर्दर ऑन मुल्तान और सिंध में कौन से थे? लनंग्स एंड अरगुन्स. बस ये 2-3 शब्द याद रखने हैं. बलोचीज एक और ट्राइब थे. ठीक है, तो ये सारा डायग्राम उन्होंने बताया हुआ है, देखिए लनंग्स एंड अरगुन. ठीक है, खोकर्स, गक्कर्स, द भील्स, द कोलीज, द गोंड्स, द बाइगास, हॉर्न्स. ठीक है, नीचे ये वाले साउथ वाले याद रखना. इन द नॉर्थ ईस्ट अहोम्स, नागाज, कचरीज, खासीज, कोच. देखिए अहोम्स आपको याद रहेगा, नागाज आपको याद रहेगा, खासीज आपको याद रहेगा. आपको फोकस किस पर करना है? इस पर. ठीक है, कचरीज पर. चेरोज किस रीजन में, ओराउंस कौन से रीजन में, मुंडास कौन से रीजन में. ठीक है, तो दिस मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप अपने उस वाले फोल्डर में डालें, राइट. So they were also, some tribes are also divided into smaller clans under different chiefs. In the western Himalayas, ठीक है, यानी कि हिमाचल प्रदेश वाला जो एरिया, ठीक है, you find the Gaddi tribes which are the
शेफर्ड ट्राइब्स यानी कि pastoralist, ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्ट में आपको कौन से मिलेंगे? नागाज, अहोम्स एंड सम अदर्स लाइक कचरीज, ठीक है, खासीज, कोचीज। तो ये सब कहाँ पे मिल रहा है आपको? नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में मिल रहा है, ठीक? बिहार और झारखंड वाला जो आज का एरिया है वहां पर आपको चेरो किंगडम्स मिलेंगी, ठीक है। ये मैंने बताया भी था कि जब अकबर या फिर उसके बाद उससे पहले वाले राजा जब कंट्रोल करने की कोशिश करते थे टूवर्ड्स लेट से बंगाल, बिहार, तो दैट कंट्रोल वाज नॉट वेरी इजी। तो होता क्या था यूजुअली कि बंगाल कुछ टाइम के लिए उनके पास आएगा, फिर चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। तो अकबर एंड उनका जो बंगाल एक्सपेडिशन था या फिर जो रिबेलियंस बंगाल में हुए थे उसको कंट्रोल करने के लिए अकबर ने राजा मानसिंह को भी भेजा था, राइट। राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मतलब इनको भेजा था, राइट। तो वहां से भी आप लिंक कर सकते हैं कि राजा मानसिंह, अकबर्स फेमस जनरल, अटैक एंड डिफीटेड द चेरोज इन 1591, ठीक है। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट। अकबर के रिगार्डिंग कोई भी फैक्ट है अगर एनसीईआरटी में, mark it very important and take it very on, take it on extreme अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस फ्रॉम माय साइड कि भाई वो किसी भी तरीके से यूपीएससी आपके सामने प्रेजेंट कर सकता है, राइट। इट कैन बी अ सिंगल वन वर्ड टाइप ऑफ थिंग, इट कैन बी मल्टीपल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन, इट कैन बी बेस्ड ऑन मल्टीपल स्टेटमेंट्स, ठीक है। और मान लो किसी और किताब से एंशियंट मिडिवल का सवाल उठकर आए, राइट, विच यू हैव नॉट रेड, उसका दुख इतना ज्यादा नहीं होता है। बट एनसीईआरटी से उठ के सवाल आ जाए एंड आपने एनसीईआरटी का कोर्स कर रखा हो एंड स्टिल यू आर नॉट एबल टू आंसर डिस्पाइट यू बीइंग गिवन वार्निंग्स एन नंबर ऑफ टाइम्स कि भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दैट वो काफी खराब फील होता है, राइट। So when Akbar's का जनरल राजा मानसिंह attack, a large booty was taken, ठीक है, but they were not entirely subdued. Under Aurangzeb, Mughal forces captured many Chero fortresses and subjugated the tribe. Mundas and Santals were other important tribes in Odisha and Bengal. ये आपको पता है, this is, ये आप पोस्ट इंडिया, मॉडर्न इंडिया में भी पढ़ते हैं, राइट। क्लैन क्या होता है? क्लैन की डेफिनेशन इज दे ट्रेस डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, कि भाई हमारे पूर्वज एक ही, राइट, एंड देयरफॉर वी आर लिंक्ड बाय किनशिप बॉन्ड्स, उनके रिश्तों से हम जुड़े हुए हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन थे? कोलीज एंड बेरार्ड्स, याद रखना, ठीक है। कोलीज वर आल्सो फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ गुजरात। साउथ में आपको कौन कौन मिलते हैं? कोरागास, वेतर्स एंड मारावर्स, ठीक है। ये वैसे भी साउथ के नाम लग रहे हैं तो इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई। व्हील्स आपको कहाँ मिलेंगे? वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में। तो अगर हम व्हील्स देखें, ये देखिए, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया इन व्हील्स spread across western and central India. By the late 16th century, many of them had become settled agriculturists. Of course, ये हम मॉडर्न इंडिया में भी पढ़ते हैं कि धीरे धीरे ट्राइबल सोसाइटी में भी कुछ, some parts of the tribal society they upgrade वो from nomadic herding, from hunter gatherers, from shifting cultivation, वो धीरे धीरे settled agriculturists बन जाते हैं and therefore some association with the mainstream community starts and some sort of interaction and codependence starts to happen between the tribal society and the mainstream society. बट ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्मली ये ट्राइबल सोसाइटी में हो रहा है, some parts of the tribal society, some tribes, some parts of some tribes, right? Many of them become settled agriculturists and some even become zamindars. Many भी, और इसी कारण से क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी पहले ये यूनिफॉर्म थी, अब क्या होगा? कुछ ट्राइब्स अपग्रेड कर जाएंगे एंड एज द ट्राइब्स आर एक्सपैंडिंग, जैसे जैसे ट्राइब्स एक्सपैंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेशियल एरिया, तो होगा क्या? उस कारण से कुछ ट्राइब्स जब प्रोग्रेस करेंगी बिकॉज दे आर गेटिंग लेट से एक्सटर्नल सपोर्ट, बिकॉज क्योंकि इकोनॉमिक नेटवर्क्स के साथ वो कनेक्ट हो गए, तो इस वाले ट्राइब के बीच में और इस वाले ट्राइब के बीच में एक सोशल डिफरेंशिएशन बनना शुरू हो जाएगा। एंड ये सोशल डिफरेंशिएशन कुछ कुछ उसी टाइप का है जैसा आपको कास्ट बेस्ड सोसाइटी में मिले। सो यहाँ से हमें सीखने को क्या या फिर लर्निंग क्या मिलती है कि वेन एवर इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा,
वैसे वैसे आपको बेस्ड ऑन इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन एंड ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशन, मोर और लेस इट इज ऑलवेज ट्रू कि आपका सोशल डिफरेंशिएशन भी स्टार्ट हो जाएगा, राइट। एंड डिफरेंशिएशन के साथ साथ क्या होगा, इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी आएगी, राइट। They became settled agriculturists and some even became zamindars. Many bhil, however, remained hunter-gatherers, जो मैंने भी बताया. Bonds one another in these areas. Right? So ये आपको prelims के रिस्पेक्ट में याद होनी चाहिए. जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो आपको पता होना चाहिए. Right? तो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, this would not might not come very handy to you in prelims, but मेंस में जब आप सोसाइटी पढ़ोगे और वहां पर ट्राइबल टॉपिक जो पढ़ते हो, ठीक है, एंड इफ यू आर नॉट फ्रॉम लेट्स से सोशियोलॉजी बैकग्राउंड और मे बी ज्योग्राफी बैकग्राउंड और एंथ्रोपोलॉजी बैकग्राउंड, तो ये चीजें समझनी थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल हो सकती है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। ये सब आपका 7वीं क्लास की एनसीईआरटी में बताया गया, प्रोवाइडेड आपको पढ़ना आता है सही से, राइट। हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव। nomadic pastoralists moved, हमें पता है nomads कौन होते हैं, they moved from long distances, they lived on milk and other pastoral products, exchanged, तो वो जो उनको पास होता था वो दूसरे लोगों के साथ एक्सचेंज करते थे, and this is how they earned their living, ठीक है, exchange wool घी with settled agricultures for grain cloth utensils and other products, ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि कैसे होता है, right? They bought and sold these goods as they moved from one place to another. The Banjaras were the most important trader nomads. ठीक है, as it is statement आपको याद होना चाहिए कि बंजारास के लिए अगर शब्द यूज होता है ट्रेडर नोमैड्स तो वो सही होगा, ठीक है। देयर कार्मा वाज नोन एज टंडा, ठीक है, तो व्हाट इज टंडा, द कार्मा ऑफ द बंजारास। बंजारास की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि खिलजी यूज द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन एंड दे वर आल्सो यूज्ड बाय द मुगल आर्मी फॉर ट्रांसपोर्टिंग ग्रेन, ठीक है। यहाँ पर नोमैड्स एंड आइटरेंट ग्रुप्स के बारे में बताया। बेसिकली आइटरेंट ग्रुप्स आर द नोमैड्स, टाइप ऑफ नोमैड जो दूसरी ऑक्यूपेशंस प्रैक्टिस करते हैं, राइट, दे प्रैक्टिस डिफरेंट ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो बंजारास के बारे में पीटर मुंडी, याद रखना, पीटर मुंडी एन इंग्लिश ट्रेडर ऑफ द 17th सेंचुरी, उसने भी बात की है। पीटर मुंडी किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ, ही वाज अ ट्रेडर, एन इंग्लिश ट्रेडर एंड ही हैड टॉक्ड अबाउट बंजारा, राइट। सो बंजारा, मान लो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बंजारास। पहला वो है क्या, दूसरा दे वर यूज्ड बाय, एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी एंड द मुगल्स। पीटर मुंडी एन इंग्लिश ट्रेडर had mentioned this about। अब वो दिस आपको पता होनी चाहिए, मोर और लेस वो सही होगा, लेकिन पीटर मुंडी है कौन, एंड यस दिस हैज बीन मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, ठीक है, वो चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ऑब्वियसली जो मैं आपको क्वेश्चन या फिर जो मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो बहुत रॉ है, डायरेक्ट यूपीएससी ऐसे नहीं आपके सामने प्रेजेंट करेगा, राइट, कि बिल्कुल एक पेज में से उठा के 3 स्टेटमेंट दे दी, बट यस एट डिफरेंट पॉइंट्स इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट डिस्क्रीट वेज यूपीएससी आपके सामने जरूर प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दैट ऑन कंसेप्चुअल पार्ट एज वेल एज ऑन द फैक्चुअल, राइट। Many pastoral tribes reared and sold animals. Different castes of petty peddlers also traveled. Sometimes mendicants also acted as merchant. Mendicant matlab you can trace, consider as the people who live their living by begging. ठीक है, there were caste of entertainers as well. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि different types या फिर in tribes they resorted to different type of activities. कुछ कुछ settled agriculturists बन गए, कुछ कुछ nomadic herders ही रह गए, some पेटी पेडलर्स थे, कुछ मेंडिकेंट्स दे एक्टेड एज मर्चेंट्स। तो ये डिफरेंशिएशन थोड़ी सी बताई हुई है, ठीक है। यहाँ पर बस इतना आपको याद रखना है, कुटिया कोन ट्राइब इज रिलेटेड टू उड़ीसा, ठीक है। यहाँ पर दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ द चेंजेस आर नाउ हैपनिंग एज द इकोनॉमी, ये जो कहानी मैंने आपको बताई, एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रो, पीपल विद न्यू स्किल्स आर रिक्वायर्ड, स्मॉलर कास्ट और जातिज इमर्ज विद इन वर्नास। यही चीज आपको एंशिएंट इंडिया में भी बताई थी व्हेन, जब हम पढ़ रहे थे कि कैसे गुप्ता के टाइम पर ये सब हो रहा था बहुत सिग्निफिकेंटली, एंड मोर नंबर ऑफ जातिज सब कास्ट वर कमिंग इन with the all within the already defined varna system, right?
For example, new castes appeared amongst the Brahmanas. On the other hand, many tribes and social groups were taken into caste-based society and given the status of special jatis, like smiths, carpenters, masons. अब सबको एक एक नेम से आइडेंटिफाई किया जाने लगा कि ये इस पर्टिकुलर जाति से बिलोंग करते हैं, राइट? एज एंड व्हेन यू विल फाइंड अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन विच डज नॉट फिट इनटू योर ओल्ड फोर क्लासिफिकेशन एंड उसको ट्राइबल सोसाइटीज कर रही है या कास्ट सोसाइटीज कर रही हैं, तो यू विल ऑलवेज फाइंड वे to classify them into a system या फिर assign a particular name to it, right? Were recognized as separate jatis by the Brahmana. Jatis rather than Varna became the basis for organizing society, right? ये हमने पहले बात की. Prathakars, for example, means जो chariot makers थे, right? Among the Kshatriyas, ये ब्राह्मणस में डिवीजन आ रहा है, क्षत्रियज में भी डिवीजन, मतलब ब्राह्मणस में डिवीजन नहीं आ रहा कि along with the division happening on the basis of occupation, क्षत्रियज में भी आपको डिवीजन देखने को मिलेगा, ठीक है? न्यू राजपूत क्लैंस बिकेम पावरफुल बाय 11th एंड 12th सेंचुरी. ये बताया था आपको कि तोमर्स, ठीक है, परमार्स, चंडेलाज, इन सब की बात हो रही है, ठीक है? अब ये जब निकल कर आ रहे थे तो दे सेड कि भाई वी बिलोंग टू डिफरेंट लीनिएजेस. मतलब ऐसा हिस्टोरियंस का बोला जाता है कि दे माइट हैव बिलोंग टू डिफरेंट लीनिएजेस, लेट्स से ये हुन्स, चंदेला, चालुक्यास, और इन सब से निकल के ये राजपूत कम्युनिटीज आई हैं. सम ऑफ दीज टू माइट हैव बीन ट्राइब्स अर्लियर. Many of these clans came to be regarded as Rajputs. So from they might have been, you know, sharing a descent from, let's say, Hunas or Chalukyas or Chandelas, or they might have been some tribes, but now they have graduated towards Rajputs, the Kshatriya class. ठीक है? और इन सब के लिए करते क्या थे? It is not very easy कि आप अकॉर्डिंग टू सोशल सोसाइटी आप एक लोअर स्ट्रैटिफिकेशन में है, लोअर लेवल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में है, और आपको क्षत्रिय बनना है, राइट? यू एस्पायर टू बी अ रूलर एंड दिस इज नॉट इजी. लोग आपको इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है? इसके लिए करते क्या थे? ब्राह्मण्स की मदद से बहुत इलेबोरेट सैक्रिफाइसेस करते थे, और आपको पता भी है राजपूत कम्युनिटी इज नोन फॉर दिस, राइट? They gradually replaced the older rulers, especially in agricultural areas. Here, a developed society was emerging, and rulers used their wealth to create powerful states. This is true about Rajputs, right? The rise of Rajput clans. अब अगर एक बंदा प्रोग्रेस कर गया है अपनी जिंदगी में, तो दूसरे भी चाहेंगे करें. तो the position of rulers set an example for tribal people to follow. Gradually, many tribes became a part of the caste system. ट्राइब्स को लगा कि ये जो कुछ हमारे लोग थे, ये तो भाई क्षत्रिय बन गए, कास्ट सिस्टम का पार्ट बन गए, और अब ये रूलर बन गए, और अब इनकी तो बहुत पूजा होती है, राइट? ये तो राजा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो कुछ और ट्राइब्स ने भी ये कोशिश की. लार्ज मेजोरिटी joined the lower jatis of the caste society. So now they are talking about how earlier they had talked about about the conflict and the codependence between the jatis and the between the caste system and the tribes. Now they are also talking about how certain tribes aspired to become a part of the caste system. ठीक है, but इतना easy नहीं होता था. Just because Rajputs did it does not mean everyone would be able to do it. ठीक है, so majority joined the lower jatis. On the other hand, many dominant tribes of Punjab, Sindh and Northwest frontier adopted Islam. अब कुछ मान लो प्रोग्रेस करना है, ठीक है, यू आर फीलिंग कि भाई ट्राइबल सोसाइटी आपको समझ आ गया कि वी माइट नॉट बी एबल टू प्रोग्रेस दैट मच. कुछ ज्वाइन द कास्ट सिस्टम ऑफ हिंदुइज्म, कुछ फेल्ट कि भाई हमें इतना इजी नहीं, वो ज्वाइन नहीं होगा, या फिर आवर वैल्यू सिस्टम इज नॉट मैचिंग विद द कास्ट सिस्टम, ठीक है? तो दे डिसाइडेड टू ज्वाइन इस्लाम, ठीक है? दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम. The unequal social order prescribed by Orthodox Hinduism was not accepted by them. So this paragraph talks about this paragraph in the earlier paragraph. It talks about how the how the tribal system is trying to
upgrade itself, and in that journey it might convert itself or might become a part of the caste system, just like the Rajputs became a Kshatriya, okay, or it might adopt somewhat like, it might try to become a part of Islam, okay. The emergence of states is closely related to social change, ठीक है. टू एग्जाम्पल अब ये आपको बताएंगे, दो एग्जांपल्स के थ्रू ये इलस्ट्रेट किया जा रहा है, ठीक है, कि कैसे गोंड्स हाउ दे हैव प्रोग्रेस एंड कैसे अहोम्स हाउ दे हैव प्रोग्रेस. इसमें एक कहानी पर फोकस रखना, एंड सेकेंडली जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीजें आ रही है उस पर फोकस. गोंड्स दे लिव्ड इन द फॉरेस्टेड रीजन. गोंड्स का रीजन कौन सा है? सी दिस वन, राइट, द मध्य प्रदेश एंड ऑल, ये वाला रीजन. The Gonds lived in a vast forested region called Gondwana. Gondwana आपको पता है कौन सा एरिया? Country inhabited by Gonds. गोंडवाना के ऊपर भी यूपीएससी सवाल पूछ चुका है. डायरेक्टली नहीं था, लेकिन गोंडवाना पता होगा कहाँ पर है तभी तो गोंडवाना का सवाल अटेंड करोगे, ठीक है. दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन. दे वर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्लैंस, ईच हैविंग इट्स राजा और राय. मैंने बताया ये ओलिगार्की सिस्टम है जो शुरुआत में डिस्कस किया था, ठीक है. व्हेन द महाजनपदास वर फॉर्मिंग, तो डिफरेंट टाइप ऑफ महाजनपदास होते हैं. यहाँ पर महाजनपदास की बात नहीं हुई है, बट जस्ट टू एक्सप्लेन दिस कि एक पर्टिकुलर ट्राइबल सोसाइटी जो है that can be subdivided into smaller clans and that can be controlled by a particular raja, right? So ये oligarchy type system है, ठीक है. When the power of Delhi sultans was declining, a few large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chiefs, ठीक है. मैंने बताया कि politically the influential tribal societies will try to extend their spatial domain, ठीक है. जिस रीजन पर वो रूल कर रहे हैं या जिस रीजन पर उनकी बात चल सकती है, स्पेशली इट वुड बी ट्रू अगर वो एरिया फॉरेस्टेड एरिया, ठीक है. द अकबरनामा, a history of Akbar's reign, mentions the golden kingdom of Gada Katanga that had 70,000 villages under it, ठीक है. We talk about Rajputs, we talk about Mughals, we talk about Delhi Sultanate, we talk about Vijayanagar and all these dynasties. But एक गोंड किंगडम भी थी, गड़ा कटंगा जिसको कहते थे, ठीक है, and that had 70,000 villages under its control and not a very small amount, ठीक है. The administrative system was centralized. Rani Durgavati was associated with it, ठीक है. Each गढ़, the kingdom was divided into gad. Each gad was controlled by a particular Gond clan. This was further divided into 84 villages called Chaurasi. That was further divided into Barhoots. So आप बस याद रखना गढ़, चौरासी, बरहूट, ठीक है. That is related with Gond kingdom. गड़ा कटंगा is related with Gond kingdom. बस इतना आपको याद रखना. Plus the process you are understanding, ठीक है. The emergence of large states changed the nature of Gond society. मैंने बताया कुछ ऊपर चले जाएंगे और जो नीचे रह जाएंगे फिर उनके और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा. They got divided into unequal social classes. Brahmins received land grants from the Gond Rajas. More or less अब ये इनको प्लीज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, and became more influential. The Gond chiefs now wish to be recognized as Rajputs. Obviously हर कोई नहीं कर सकता वो, ठीक है. ये नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि पिछले साल ही न्यूज में भी रहे थे. सो अमन दास, द गोंड राजा ऑफ गड़ा कटंगा, assumed the title of संग्राम शाह, ठीक है. अमन दास जो राजा था उसने टाइटल लिया संग्राम शाह का. His son Dalpat married Princess Durgavati, the daughter of the Rajput Raja of Muhum. As it is, ये facts आपको याद होने चाहिए. नंबर वन, अमनदास he assumed the title of संग्राम शाह. उसके बेटे दलपत ने शादी की प्रिंसेस दुर्गावती से, who was the daughter of
डॉटर वाला चाहिए ना, याद रखना, बस प्रिंसेस दुर्गावती से शादी। रानी दुर्गावती वॉज वेरी केपेबल, started ruling on behalf of her son Veer Narayan. ठीक है, so Sangram Shah and Veer Narayan usually are talked in the context of which particular tribal society. ठीक है, under her kingdom became even more extensive. Mughal forces under Asaf Khan, I told you कि मुगल्स वुड वांट टू एक्सपैंड। एक चीज हो सकती है कि आप फर्टाइल एरियाज में या फिर प्लेन एरियाज एक्सपैंड करते हैं, बट देन अगेन आज हम जैसे इमेजिन करते हैं कि इतना फॉरेस्टेड एरिया, ऑब्वियसली पहले के टाइम में उससे बहुत ज्यादा होगा, एंड अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द लैंड व्हेन इट इज अंडर फॉरेस्ट वो ट्राइब्स के कंट्रोल में होता था, एंड द सेंट्रल अथॉरिटी वुड ऑलवेज वांट कि मेरा वहां पर रूल हो, चाहे सॉवरेनिटी ना हो, सुजरेनिटी हो, राइट। तो द मुगल फोर्सेस अंडर असफ खान अटैक गड़ा कटंगा, रेजिस्टेंस वॉज गिवन बाय रानी दुर्गावती। तो 1565 की बात हो रही है, मान लो इस टाइप का सवाल आ जाए कि रानी दुर्गावती एंड अकबर वर कंटेम्पररीज, ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में ही मेंशन है। शी वॉज डिफीटेड एंड प्रेफर्ड टू डाई रादर देन सरेंडर, राइट। Gadakatanga was a rich state. It earned its wealth by exporting wild elephants. When the Mughals defeated the Gonds, they captured a huge booty of coins and elephants. They annexed it and granted some part of it to Chandra Shah. बस नाम पढ़ लिया, याद रह जाएगा, right? Despite the fall of Gadakatanga, the Gond kingdom survived for some time. However, they became weaker. तो through the Gond kingdom इन्होंने आपको बताया है कि कैसे एक ट्राइबल सोसाइटी की एस्पिरेशंस भी बढ़ रही थी, राइट, पॉलिटिकली भी एंड सोशली भी, राइट। देन द नेक्स्ट एग्जांपल दे हैव टेकन ऑफ इज अहोम्स। द अहोम्स माइग्रेटेड टू ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम द प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th सेंचुरी। तो इनकी कहानी 13th सेंचुरी के आसपास शुरू हो रही है, राइट। They created a new state by suppressing the older political system of Buyans. ये प्रीलिम्स के लिए याद रखना, भुयंस मींस लैंडलॉर्ड्स। दे अनेक्स द किंगडम्स ऑफ छुटियाज एंड कोच हाजू। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लिया याद रह जाएगा, राइट। छुटियाज एंड कोच हाजू आर रिलेटेड टू विच रीजन, द नॉर्थ ईस्ट, राइट। दे बिल्ट अ लार्ज स्टेट, अ होम किंगडम वाज, यू कैन से लगभग लगभग इसने 600 700 800 साल राज किया इस किंगडम में, राइट। औरंगजेब के बाद तक, काफी बाद तक, जब तक मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम तक ये किंगडम इट वाज रूलिंग, राइट। तो 600 700 साल रूल करना इज नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग, एंड ये हमारे हिस्ट्री में एक फॉल्ट है कि हम जो इम्पोर्टेंट किंगडम्स हैं, अपार्ट फ्रॉम लेट से जो एंशिएंट में हम पढ़ते हैं, जो मिडीवल में पढ़ते हैं, उसके अलावा साउथ के इंपॉर्टेंट किंगडम्स, चोलास, राइट, विजयनगर, होम्स, ये सब हम पढ़ते हैं, राइट। सो ऑब्वियसली हिस्ट्री नीड्स टू बी करेक्टेड एंड रिफाइंड इन दिस रेस्पेक्ट। Holmes built a large scale, used firearms. By 1660 they could even make high quality gunpowder and cannons. तो आपको पता लग रहा है कि ये भी अच्छी खासी किंगडम थी। However, they faced many invasions in 6062, roughly औरंगजेब का टाइम, ठीक है। Mughals under Mir Jumla attacked the Ahom kingdom. Aurangzeb for some time was able to was successful in getting his control over the home kingdom. Homes were defeated, but direct Mughal control could not last for very long. The homes depended upon forced labor. The forced labor was called payaks. याद रखना, forced labor was called payaks. ये देखिए नाम नहीं, ठीक। Population from heavily populated areas were shifted to less populated places. Home clans were thus broken. Almost all adult males served in the army during war time. तो ये सब इन्होंने बताया हुआ है कि इकोनॉमिकली वो क्या करते थे, सोशली वो क्या करते थे, तो बस ये आपको पता है, आर्मी में सर्व करते थे, डैम्स, इरिगेशन और ये सब बनाते थे, राइस कल्टीवेशन करते थे।
दे वर डिवाइडेड इनटू क्लैन्स और खेल्स। क्लैन को क्या कहते हैं? खेल। ठीक है। ये सब जितने नए वर्ड आए हैं एक पेज पर लिख लेना व्हेन यू आर रीडिंग दिस चैप्टर एंड कीप रिवाइजिंग इट। राइट। योर एक्सक्यूज शुड नॉट बी कि ये इतनी मुश्किल है। ठीक है। रादर योर मोटिवेशन शुड बी कि एनसीईआरटी में यूपीएससी एनसीईआरटी पूछ रहा है आजकल। ठीक है। एंड टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है। प्लस आई हैव अ कोर्स विद मी टू डायरेक्ट व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। देयरफॉर इट इज इन माय ओन पर्सनल इंटरेस्ट कि मैं इसको अच्छे से पढूं। सो आर्टिसंस इन द होम एरियाज केम फ्रॉम adjoining regions. The peasant was given land. ये सब कहानी है, not very important. Originally the this one is important. एक रीजन, एक यू कैन से लोकल रीजन पहले अपने लोकल गॉड को वर्शिप कर रहा हो, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे इट वुड कंट्रोल कम इन कंट्रोल विद अ मेन स्ट्रीम सोसाइटी। ठीक है। तो मेन स्ट्रीम जो कल्चर है, मेन स्ट्रीम जो रिलीजन है, वो भी उसे इन्फ्लुएंस करने लगे। तो यही यहाँ पर बताया गया। Originally, Ahoms worshipped their own tribal gods. However, later, during 17th century, the influence of Brahmins increased. Temples and Brahmins were granted land in the reign of Sib Singh. तो याद रखना, Sib Singh is the ruler associated with Ahoms. ठीक है। Hinduism became the predominant religion, but इसका मतलब नहीं कि उनका खुद का local gods को worship करना कम कर देंगे। Ahom society was very sophisticated. There were poets and scholars who were given land grants. There was theatre. Important works of Sanskrit were translated into local language. ये याद रखना prelims के aspect में. Historical works known as Buranjis were also written first in a home language and then in Assamese. So Buranjis is related to Ahoms. Sib Singh is a ruler of Ahom kingdom. Payaks are the laborers under Ahom kingdom. ठीक है। They were divided into clans known as खेल्स। अहोम्स कहाँ पे है? असम में है। असम अहोम्स ruled for near about 500-600 years. औरंगजेब for some time was able to control it, right? तो ये सब आपको चीजें क्लियर है, right? So this was the fifth chapter जिसमें आपका tribes and how they interacted with the society, the mainstream society, and how they aspired to become better, उस सब की बात की गई, right? So we are done with the fifth chapter. ठीक है। सो वी आर डन विद द फिफ्थ चैप्टर। द सिक्स्थ चैप्टर इज अबाउट द भक्ति मूवमेंट। ठीक है। कैसे उसने प्रोग्रेस किया एंड इन द नॉर्थ इंडिया, इन द साउथ इंडिया, एंड द सूफी मूवमेंट। प्लस दे हैव टेकन एग्जांपल ऑफ कबीर एंड गुरु नानक जी टू एक्सप्लेन उनके जो फैक्ट्स वगैरह, राइट। यहाँ पर बताया हुआ है it is about the basics कि intense devotion or love of God is the legacy of various kinds of bhakti and Sufi movements since the 8th century। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे जैसे सोसाइटी थोड़ी सी टुवर्ड्स ज्यादा ऑर्थोडॉक्सी जाएगी, वहां पर एक नया रिलीजन डेवलप होगा जिसको पीपल वुड बी सीइंग एज अ रिफ्यूज फॉर देयर नॉन एक्सक्लूजन फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स सिस्टम। जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म के टाइम पर हुआ। ठीक है। बुद्धिज्म जैनिज्म को काफी लोगों ने अपनाया एंड मॉडर्न पीरियड में बुद्धिज्म को एक प्रमोशन मिला, राइट। देन धीरे धीरे हम देखते हैं कि बुद्धिज्म इटसेल्फ स्टार्ट्स टू बिकम अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। महायान बुद्धिज्म, फिर उसमें डिवीजन हो गया, राइट। इमेज वर्शिप वहां पर स्टार्ट हो जाती है एंड लैक्सिटी आ जाती है। एंड इस टाइम पर क्या हो रहा होता है कि हिंदुइज्म स्टार्ट्स रिफॉर्मिंग इटसेल्फ। ठीक है। तो वहां पर भगवत गीता, ठीक है, उस तरीके से दैट पीपल आर इक्वल, वो सब बातें चल रही होती है। एंड देन पुरानास का कॉम्पोजिशन होता है, राइट। एंड पुरानास में दे आर ऑफ द व्यू पॉइंट कि भाई almost everyone can participate, that social differentiation is not important, and rather than Brahman centric focus, the focus was local। ठीक है। तो इस तरीके से पुरानास हो, चाहे आपका लेट्स से डेवलपमेंट ऑफ द टेक्स्ट लाइक भगवत गीता, ठीक है, इन सब से हुआ क्या, योर ब्राह्मणिज्म वाज गेटिंग सॉफ्टेंड। So wherein
बुद्धिज्म वॉज गेटिंग समवेयर, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म थोड़े से दोबारा कॉम्प्लिकेट होने शुरू हो गए। ब्राह्मणिज्म ने कोशिश की थोड़ा सा सॉफ्ट होने की, राइट। ये है कहानी नॉर्थ इंडिया की मोरलेस, ठीक है। बट दैट डज नॉट मीन कि भक्ति मूवमेंट की डेवलप हो चुकी है। यस, यू कैन से स्लाइट फॉर्म ऑफ इम्प्रूवमेंट है स्टार्टेड। भक्ति मूवमेंट की रियल शुरुआत होती है साउथ इंडिया में, राइट। साउथ इंडिया में अलवर्स एंड नयनर्स दे स्टार्टेड द भक्ति मूवमेंट, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में लगभग लगभग आपको 13वीं 14वीं सेंचुरी तक भक्ति मूवमेंट काफी प्रोमिनेंट तरीके से नहीं देखने को मिलेगी, और इसका एक मेजर रीजन रहता है राजपूत, राइट। क्योंकि राजपूत देवर एस्पायरिंग टू बिकम क्षत्रिय, देवर एस्पायरिंग टू बिकम रूलर्स, एंड दे नीडेड द सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण्स, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स, राइट। तो इसलिए Rajputs they patronize Brahmins and they patronize the Orthodox Brahminism, right? and इस वजह से बोला जाता है कि नॉर्थ में जब तक राजपूत डोमिनेंट थे तब तक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट भक्ति मूवमेंट का डेवलपमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, राइट। एंड दिस एक्सप्लेन्स कि भक्ति मूवमेंट थोड़ा सा लेट रीच करता है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। बट दैट डज नॉट मीन कि भाई बिल्कुल ही एकदम से 13वीं 14वीं सेंचुरी में आया भक्ति मूवमेंट वहां पे, ठीक है। एक दिन पता लगा सडनली आ गया वो। उससे पहले बहुत डेवलपमेंट्स थी, बट दैट डेवलपमेंट्स वर नॉट एबल टू चैलेंज, यू कैन से, द इन्फ्लुएंस था जो राजपूत का था या फिर जो कोर ब्राह्मणिज्म था, राइट। ऑब्वियसली चीजें डाइल्यूट हो रही थी, बट टू द एक्सटेंड जो भक्ति हम इन्फ्लुएंस कर रहे थे इन साउथ इंडिया वैसा कुछ नहीं हुआ। एंड पैरेलली आप देखते हैं कि बाहर से सूफिज्म आता है, ठीक है। सूफिज्म फ्रॉम आउटसाइड, भक्तिज्म फ्रॉम साउथ इंडिया, द लोकल इन्फ्लुएंस फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, सब मिलके एक स्ट्रॉन्ग भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में शुरू हुई, राइट। तो ये कहानी यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। Before large kingdoms emerged, different groups worshipped their own gods and goddesses. As people were brought together, there grew trade, towns, and empires. New ideas began. The cycle of birth and rebirth accepted. Idea that all human beings are not equal gained ground. The belief of social privileges came. ये सब कहानी मैंने आपको बता दी. However, not all would be easy with such ideas, and they turned to the teachings of Buddha and Jain, right, to overcome such social differences and break the cycle of birth. Others felt attracted to the idea of a supreme God who could deliver humans from who could relieve humans from such bondage if approached with devotion or bhakti. This idea, advocated in Bhagavad Gita, grew in the early centuries of Common Era. मैं बता रहा हूँ फर्स्ट सेंचुरी सीई, सेकेंड सेंचुरी सीई। तो जैसे जैसे ब्राह्मणिज्म अपने आप को डाइल्यूट कर रहा है ये चीजें डेवलप होने लग जाएंगी, राइट। यहाँ पर बताया गया द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, this was the beginning of some sort of bhakti, but you cannot say this was the beginning of bhakti movement as we talk about in the particular sense. Worship of certain deities, a central feature of later Hinduism, gained its importance. These deities included Shiva, Vishnu, Durga. Worship through bhakti, a person's devotion to his or her chosen deity. There was no distinction. All high and low caste, men or women, could follow the path of bhakti. The idea of bhakti is present in the Bhagavad Gita, the sacred book of the Hindus. तो कहीं ना कहीं एक डाइल्यूशन, कहीं ना कहीं एक अटेम्प्ट टू रीगेन द पीपल हु हैव टर्न्ड टुवर्ड्स बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वो हमें देखने को मिल रहा है। देखिए ये आज हम पढ़ते हैं कि इस तरीके से हो रहा है, but when religions are expanding, yeah, religions are trying to reassert their control, ठीक है, तो ऑब्वियसली वहां पर चेंजेस होंगे। एक टाइम पर नया रिलीजन आया एज बुद्धिज्म जैनिज्म, बाद में वो थोड़ा सा पाथ अपना भटक गए वहां से, एंड एट दैट टाइम ब्राह्मणिज्म या हिंदुइज्म फाउंड अ वे कि भाई हमें थोड़ा सा डाइल्यूट होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। एंड ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणिज्म इन द डाइल्यूटेड फॉर्म गलत था या बुद्धिज्म गलत था या फिर ये कुछ अलग बातें कर रहे थे, बट यू विल ऑलवेज फाइंड कि इनके बीच में आपको कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे, इवन दो दे माइट बी टॉकिंग अबाउट द
यू नो द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी। बट इनके बीच में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। एंड इसका एक बिग एक मेजर रीजन होता था द पेट्रनेज। सो पेट्रनेज जिस रिलीजन को मिल रही है, ठीक है, दैट रिलीजन वुड ऑलवेज, या फिर दैट पर्टिकुलर कल्चर, that particular tradition would always be viewed with some sort of not hatred but some sort of a slight discomfort, ठीक है। तो जैसे साउथ इंडिया में when bhaktism was gaining ground, bhaktism you can consider कि a diluted form of what Hinduism earlier preached, ठीक है, और बहुत ही accepted form। बट ऐसा नहीं कि भक्तिज्म इज बुद्धिज्म और जैनिज्म, राइट। सो व्हेन भक्तिज्म वाज गेनिंग ग्राउंड एंड इट मेंट relief for the people, right? लेकिन even then in South India, क्योंकि भक्तिज्म was patronized by Pallavas there, by Cholas there, ठीक है, तो इस कारण से बुद्धिस्ट एंड जैन रिलीजन के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट रहता है इन द साउथ, राइट। सो दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन कि देखो ये सब चीजें पहले भी चलती थी और आज भी चलती है। आज किताबों में लिखने के लिए चीजें थोड़ी सी क्लियरली बता दी जाती है, बट उस टाइम पर क्या कॉन्टेक्स्ट रहा होगा इन सबका, दैट कैन नॉट बी द केस कि बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा, राइट। ठीक। Shiva, Vishnu, and Durga as supreme deities came to be worshipped through elaborate rituals. Gods and goddesses worshipped in different areas. Local myths and legends became a part of the Puranic stories, Puranas. Methods of worship recommended in the Puranas were introduced in the local cults. So there's an attempt टू woo the locals, right? कि भाई हमें ऐसा नहीं कि हम एक elite section बन के अलग से रह जाएंगे, ठीक है। if we need to have legitimacy over a larger section of the population, तो आपको vocal for local होना पड़ेगा, and you will have to get a connect with the common ordinary man। तो यहीं पर वो उस तरीके से कहानी चल रही, right? Eventually, the Puranas laid down that it was possible for the devotees to receive the grace of God regardless of their caste status. Right? You can see the dilution in the stance, the dilution in the orthodoxy. The idea of bhakti became so popular that even Buddhists in Jain adopted these beliefs. Right? कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं, कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ ऑब्वियसली कुछ कन्वर्जेंस भी मिलेगा। ऐसा कुछ कुछ बुद्धिस्ट एंड जैन उनसे भी सीखेंगे, वो इनसे भी सीखेंगे, ये योगिक एक्सरसाइज योगिक प्रैक्टिस से भी सीखेंगे, सूफी वाले इनसे सूफी वाले इनसे भी सीखेंगे, एंड दिस वुड कंटिन्यू। बट whenever the story would come around patronage, तो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। A new kind of bhakti in South India, the Nayanars and Alvars. The 7th to 9th century saw the emergence of new religious movements led by Nayanars, saints devoted to Shiva. So Nayanars are devoted to Shiva, Alvars devoted to Vishnu. मैं एक ही कीवर्ड याद रखता हूँ, एनएस। एनएस सबसे पहले जब भी भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया याद आती है तो आई जस्ट रिकॉल एनएस। जैसे मैं एन रिकॉल करता हूँ, दैट मीन्स नायनर एंड शिवा, दैट ऑटोमेटिकली मीन्स एम, अलवर मीन्स विष्णु। आपको जिस तरीके से याद रख लेना, बस याद क्या करना है कि गलती नहीं होगी। who came from all castes, also like the untouchable caste like the Pulaiyar and the Panar. They were sharply critical, मैंने बताया आपको ये कहानी, of Buddhists and Jains and preached ardent love for Shiva और विष्णु। ये कहानी, और इस कहानी का एक मेजर रीजन होता था पेट्रोनेज। Otherwise, Buddhism and Jainism would also are also preaching good things. Bhaktism is also preaching good things। दोनों में कोई किस लेवल की ऑर्थोडॉक्सी नहीं है, बट पेट्रोनेज एक मेजर रीजन होता था कि ये सब किया जाता। They drew upon the ideals of love and heroism in the Sangam literature। संगम लिटरेचर को अच्छे से पढ़ना पढ़ना है आपको अपनी रेफरेंस बुक से, और आपको वहां पर पता चलेगा कि लव एंड हीरोइज्म के आसपास संगम लिटरेचर काफी ज्यादा घूमती। तो द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ तमिल लिटरेचर, हमें पता है अर्ली
एराज अर्ली सेंचुरीज ऑफ कॉमन एरा, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी सी, सेकंड सेंचुरी सी, इसमें अंडर द रूल ऑफ पांड्या ये कंपोज की गई। They drew upon the ideals of love and blended with the values of bhakti. So love plus bhakti. They came from all type of caste. Right? They went from place to place, composing exquisite poems in praise of their deities and also sang music. ठीक है, तो ये घूमते रहते थे अपने जिन भगवान को ही मानते हैं उनकी प्रेज करते हुए या उनकी भक्ति करते हुए या गाने गाते हुए घूमते रहते थे। ठीक, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की हुई है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देयर वर 63 नायनर सेंट्स who belong to different caste backgrounds like potters, untouchables, worker, peasant, hunter, soldier। see, brahmins भी थे इसमें, right, very important, chiefs भी थे इसमें। the best known अपार, संबंदर, सुंदरर, मनिका व सागर। तो याद रखना ASSM, this is नायनर्स शिवा, राइट। इनकी कंपाइलेशंस दो थी, तेवरम एंड तिरुवाकम। अलवर्स 12 थे, they also came from different backgrounds, the best known being पेरी अलवर, उनकी डॉटर अंडल, तोंद्रापटी अलवर, अर्नम अलवर। राइट, बस ये देख लेना, याद रह जाएगी। इनकी कंपाइलेशन कौन सी थी? दिव्या नाला प्रबंध। राइट, तो उनकी कौन सी थी? तेवरम, इनकी दिव्य प्रबंध। बिट देखो, ये वाला जो चैप्टर है ये आपकी थीम 2 में और ज्यादा डिटेल्स में एक्सप्लेन है, तो वहां पर भी हम देखेंगे। ठीक है, अदरवाइज इसमें भी बहुत अच्छी एंड स्पेसिफिक डिटेल्स है, तो हमें ये चैप्टर बहुत अच्छे से इस एनसीईआरटी से भी देखना और थीम 2 से भी देखना। बिटवीन यहाँ पे वो बात की गई है, between the 10th and 12th centuries, the Chola and the Pandya king built elaborate temples around many of the shrines visited by the saint women। See, अब क्या हो रहा है, इन्हें लग रहा है, चोलास और पांड्यास को लग रहा था कि भाई ये तो फेमस हो रहे हैं, ठीक है, लोग इनको चाह रहे हैं, एंड अगर हमें अपनी लेजिटिमेसी बढ़ाए रखनी है तो हमें इनको पूछना पड़ेगा, इनकी पूछ करनी पड़ेगी। ठीक है, सो दे बिल्ट इलेबोरेट टेम्पल्स अराउंड द श्राइन्स विजिटेड बाय द सेंट पॉइंट, strengthening the links between the bhakti tradition and temple worship। so मान लो यहाँ पर अलवर्स एंड नायनर्स है, ठीक है, they would want the support of the kings would want their support, ठीक है, and kings would want their support for legitimacy, right? They would need their support for, of course, their sustenance, for enhancing their reach। and kings को ये पता है कि भाई the best way to show to the people that जिनको लोग मान रहे हैं उन्हीं की हम पूजा कर रहे हैं, ठीक है, द बेस्ट वे टू डू दैट इज कि आप मंदिर बनवा दो। ठीक है, दैट यू से कि इन रेवरेंस ऑफ ऑल दीज वी आर कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल। तो इस तरीके से भक्ति मूवमेंट इन टेम्पल वर्शिप में एक लिंक डेवलप हुई, राइट। डायरेक्टली द अलवर सेंट्स और द नायनर सेंट्स उन्होंने कोई मंदिर नहीं बनवाए, राइट, लेकिन क्योंकि कनेक्शन ऐसा एस्टेब्लिश हुआ कि they got connected with the temple worship, right? This was also the time when the poems were compiled, besides hagiographies or religious biographies of the of Alvars and Nayanars were also composed। this is the composition of Manika Vasagar। ये कौन है यहाँ पर बताया? she is he is a Nayanar Singh, right? तो ये सब बताया हुआ है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ भक्ति मूवमेंट जो साउथ इंडिया में आए उस सब की बात की जा रही है, राइट। शंकरा, इनकी जो फिलोसफी ही वाज इन 8th सेंचुरी इन केरला, इनकी फिलोसफी थी अद्वैत।
अद्वैत मीन्स नॉन डुअलिज्म, ठीक है। इन्होंने कहा कि सिर्फ ब्राह्मण ही सब कुछ है और ब्राह्मण के अलावा आप जो भी चीज देख रहे हो that has no existence on its own and that is only Maya. So therefore, only Brahman is the ultimate reality. He gave the philosophy of Advaita or the doctrine of oneness of the individual soul and the supreme God, which is the ultimate reality. तो जो ब्रह्मांड है, जो गॉड है, दैट इज द ओनली वन। इंसान जो है, दैट इज जस्ट एग्जिस्टिंग ड्यू टू गॉड एंड दैट इज नो सेपरेट एंटिटी। तो देर इज ओनली मोनोइज्म, देर इज ओनली वन गॉड, देर इज ओनली वन रियलिटी। He taught that Brahman or the only or ultimate reality was formless and without any attributes. कोई उसके attributes नहीं है, right? जो ये आप बाकी चीजें देख रहे हो, पेड़ पौधे इंसान, ठीक है, whatever you are seeing, they are just Maya. He considered the world around us to be an illusion or Maya, and because आपकी डिवोशन कम है, आपकी नॉलेज कम है, इस कारण से आपको दूसरी चीजें दिख रही हैं। वंस यू अडॉप्ट द पाथ ऑफ रिनाउंसिएशन, आपको समझ आएगा कि बाकी सब चीजें माया है एंड जो सच्चाई है वो सिर्फ एक। एंड प्रीच रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अडॉप्शन ऑफ पाथ ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्रह्मांड एंड अटेन सैल्वेज। तो इनकी फिलॉसफी थी अद्वैत। सिमिलरली 3 centuries बाद, he was in 8th century, 3 centuries बाद another philosopher in 11th century, Ramanuja, right, born in Tamil Nadu। ये important है, कौन से एरिया से थे ये, प्लस कौन सी सेंचुरी से थे। he was deeply influenced by the Alvars। According to him, the best means for attaining salvation was through intense devotion to Vishnu। the best way to attain salvation is कि आप विष्णु की पूजा करो, right? That is bhakti। Vishnu in his grace helps the devotee to attain the bliss of union with him। यूपीएससी मान लो इसे डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दे, and this particular stance, this particular statement can be attributed to Shankara, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजा, आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली एनसीईआरटी में आपके वल्लभाचार्य, माधवाचार्य उन सबकी डिस्कशन नहीं है, बट जो आप रेफरेंस सोर्स पढ़ेंगे उसमें इनकी डिस्कशन जरूर होगी। तो बेसिक फिलॉसफी उनकी क्या थी, ठीक है, द्वैत अद्वैत और इन सबको अपने पढ़ना। रामानुजाचार्य की फिलॉसफी थी विशिष्ट अद्वैत, which was qualified oneness in that soul, even when united with the supreme God, इंसान है, भगवान है। भगवान भी सच है, इंसान भी सच है। ऑब्वियसली भगवान इज ग्रेटर देन इंसान, बट व्हाट शंकर सेड दैट ये सब माया है, दैट इज नॉट ट्रू। दिस हैज एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑन इट्स ओन, राइट। Vishisht Advait or qualified oneness in that soul, even when united with the Supreme God, remain distinct. So obviously we are connected with God, but in that connection also we are different. Okay, we are existing as a different entity. जबकि शंकर ने कहा था कि ये डिफरेंट एंटिटी नहीं है, ये सिर्फ माया है, राइट? बिकॉज योर नॉलेज इज लेस, देयरफॉर यू आर व्यूइंग दिस माया एज अ सेपरेट एंटिटी। रामानुजा ने कहा ऐसा नहीं है, ये ऑब्वियसली यू कैन नॉट कंपेयर इट विद द अल्टीमेट रियलिटी गॉड, बट ये एक सेपरेट एंटिटी है इवन व्हेन इट इज कनेक्टेड टू और ब्रह्मांड। Ramanuja's doctrine greatly inspired the new strand of bhakti which developed in the North India subsequently। तो फर्दर इन्होंने इंस्पायर किया रामानंद और इन सब की जो फिलोसफीज थी उनको इंस्पायर, राइट। अब आपको यहाँ पर एक चीज दिख रही है कि भक्ति मूवमेंट वाज स्प्रेडिंग इन साउथ इंडिया एंड दैट गॉट कनेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द स्टेट, टू द टेम्पल वर्शिप, ठीक है। इस चीज के रिएक्शन में कर्नाटका में एक मूवमेंट आई, वीरशैव मूवमेंट, राइट।
उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, which was related to Baswan. We noted earlier that the connection between the Tamil Bhakti movement and the temple worship और भक्ति movement में कनेक्शन आ गया. This in turn led to a reaction that is best represented by Virashaiva movement, initiated by Baswana and his companions like Alam Prabhu and Akmadev. ये तीन नाम याद रखना related to Virashaiva movement. This movement began in Karnataka in around mid 12th century. ये बोलते क्या थे? वही सब बातें जो सब बोलते हैं, इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग. तो एक कॉमन सारी बातें याद रखना, जिसने जो स्पेसिफिक बोला है वो याद रखना. बस सब कुछ नहीं आप याद रख सकते कि इन्होंने ये बोला है, क्योंकि लास्ट में जाके आपको याद नहीं रहेगा. बस कॉमन ओके कि कास्ट कोई बात नहीं है, जेंडर की कोई बात नहीं है, इक्वालिटी की जगह बात है, लव की बात है, भक्ति की बात है. ठीक है, रीजनल लैंग्वेजेस है, सॉन्ग्स हैं, म्यूजिक है, ये सब कॉमन चीजें. क्या स्पेसिफिक थी वो याद रखना. इनका स्पेसिफिक आगे आ रहा है. अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज अबाउट कास्ट, ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, तो ये सब इक्वालिटी की बात करें. दे वर आल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप. जहां पर ये इस टाइप के एक्सट्रीम वर्ड्स आए उनको थोड़ा सा नोट कर लेना. ऐसा नहीं कि हर एक्सट्रीम वर्ड गलत ही होगी, राइट. यहाँ पर एक्सट्रीम वर्ड्स आर लॉजिकल, राइट. वो हर टाइप के रिचुअल और आइडल वर्शिप के खिलाफ थे, राइट. इनके जो टीचिंग्स थे उनको बोला जाता था वचन्स. वचन्स और सेइंग्स एट्रिब्यूटेड टू बासु, राइट. एग्जांपल देखो, द रिच विल मेक टेम्पल्स फॉर शिवा, व्हाट शैल आई अ पुअर मैन डू. माय लेग्स आर पिलर्स, द बॉडी द श्राइन, द हेड a cup of gold. Listen, O Lord of meeting rivers, things standing shall fall, but the moving ever still. तो ये भगवान से बात चल रही है कि भाई अमीर आदमी तो बना देगा, गरीब आदमी क्या करेगा, मैं तो सिर्फ पूजा कर सकता हूँ तुम्हें. देन डेक्कन में, महाराष्ट्र वाले एरिया में जो भक्ति मूवमेंट आती है, फिर उसके बारे में बात की जा रही है. यहाँ पर मेजरली 4 इंपॉर्टेंट नेम्स कम. वन इज ज्ञानेश्वर, इसको ज्ञानेश्वर या ध्यानेश्वर भी बोला जाता है, ठीक है, या जे से भी शुरू करते हैं इसको. द नेक्स्ट वन इज नामदेव, द नेक्स्ट वन इज एकनाथ एंड द नेक्स्ट वन इज तुकाराम. यही क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए, JNET, राइट. From the 13th to 17th century, Maharashtra saw a number of saint poets whose songs were compiled in simple Marathi. The important among them were Ganeshwar or Isa, as well as women like Sakhubai and family of Chokmela, who belong to untouchable Mahar caste. तो ये specifically याद रखना, क्योंकि ये सब तो हम 2-3 बार पढ़ते हैं, याद हो जाते हैं. Sakhubai was associated with the which strand of Bhakti movement. ठीक, ऑब्वियसली आपको पता है भाई तो वो रिलेट हो जाता है महाराष्ट्र से, ठीक है. बट एनसीईआरटी में मेंशन है तो मैं कहूंगा याद होना चाहिए, ठीक है. दे फोकस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ विठल. विठल वाज अ फॉर्म ऑफ विष्णु, ठीक है, a form of Vishnu, a local form of Vishnu. They focused on the bhakti of Vitthal temple in Pandharpur, इनकी pilgrimage वाली जगह, as well as on the notion of a personal god. भैया आप अपना एक पर्सनल भगवान मान लो, ठीक है. ऐसा जरूरी नहीं कि जो दूसरे फॉलो करने हैं वही आपको करने की जरूरत है. Residing in the hearts of all people. These same poets rejected all forms of ritualism, outward display of piety and social differences, and even rejected the idea of renunciation. जैसे शंकर देव ने बोला था, सॉरी ऊपर शंकर ने बोला था कि renunciation would be the solution. एंड ऐसे और भी भक्ति स्ट्रैंड्स बोलते थे. बट महाराष्ट्र में जो भक्ति मूवमेंट आया, इन्होंने कहा कि भाई आपको कुछ त्यागने व्यागने की जरूरत नहीं है, अपना आराम से जिंदगी जियो और भगवान की पूजा करो, बस यही असली जिंदगी. And they rejected the idea of renunciation and preferred to live with their families, earning their livelihood like any other person, while humbly serving fellow human beings. A new humanist idea emerged as they insisted sharing others' pain. ठीक है. एक और गुजरात में भक्ति सेंट थे जिनका नाम था नरसिंह मेहता.
उन्होंने महाराष्ट्र वाले सेंट्स के बारे में कहा था, दे आर वैष्णव हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। ये वही है जिन्होंने वो प्रेज दिया था वैष्णव जंतु, जो गांधी जी ने यहाँ पर बताया गया। तो वैष्णव पोएट सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र like these were devotees of Lord Vitthal. They gave rise to Varkari sect. याद रखना, Varkari sect is related to them, which has emphasis on annual pilgrimage to Pandharpur. The cult of Vitthal emerged as a powerful mode of devotion. Right? जैसे ऊपर वैराशिवा वालों के वचन थे कंपोज बाय बासवाना एंड मेनी अदर्स, ये जो कंपोज करते थे उन्हें कहते थे अभंग्स, देवर डिवोशनल हिम्स। ठीक है, संतों का राम की यहाँ पर बात की जा रही है, तो याद रखना, दे कंपोज अभंग्स, दिस इज कंपोज बाय चोकमेला सन। राइट, सो ये साउथ इंडिया की हमने बात की, मेजरली किसकी बात की हमने, पहले शंकरा, देन रामानुजा, और भी थे, ठीक है, बट एनसीईआरटी में इनकी बात है। देन वी टॉक्ड अबाउट वीरशैव मूवमेंट ऑफ बासवन्ना, देन इन डेक्कन वी टॉक्ड अबाउट दिस ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, इन सब की बात की। अब आई हैव टोल्ड यू कि नॉर्थ इंडिया में 13वीं 14वीं सदी तक भक्ति मूवमेंट नहीं आया, राइट, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी अटेम्प्ट नहीं था, एक ऐसा अटेम्प्ट था, मतलब टू सिंप्लीफाई द थिंग्स बाय नाथपंथी सिद्धास एंड यूनिट्स। A number of religious groups criticize the ritual and other aspects of conventional religion and social order using simple logical argument कि भाई ये सही है, ये नहीं सही है, बस सिंपल आर्ग्यूमेंट। देवर नाथपंथी सिद्धाचार्य एंड योगीज, they advocated renunciation. So unlike the Maharashtra saints, they advocated renunciation. To them, the path of salvation lay in meditation of the formless ultimate reality. कि बस आप ध्यान में लीन हो जाओ भगवान के, ठीक है, ऑब्वियसली आप ये पिक्चर देखकर इमेजिन भी कर सकते हो कि बस जितना आप ध्यान करोगे उतना ही आप भगवान के करीब, और उतना ही आप अल्टीमेट रियलिटी के करीब, और उतना ही आप सैल्वेशन के करीब जाते जाओगे। ठीक है, lays in meditation and the realization of oneness. To achieve this, they advocated, अब इसको कैसे किया जाए, they advocated intense training of the mind and body through practices like yogasan, breathing exercises and meditation. These groups became particularly popular among low caste. Obviously मैंने कहा आपको उस टाइम पे राजपूत वाली चीज चल रही है वहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, and Rajput they are graduating in Brahminical in the Varna order, and they are seeking the support of Brahmins. So, and these yogis, Naths and Siddhas and Nathpanthis, they are trying to question that thing. तो इनकी जो पॉपुलर, एंड दे वुड ऑल्सो बी कमिंग फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स, तो इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो ज्यादा बढ़ेगी लो कास्ट में। द क्रिटिसिज्म ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन created the ground for devotional religion to become a part of popular force in North India. तो इन्होंने शुरुआत कर दी थी उस आग की, जो फाइनली with the help of their initiative, with the help of Bhakti movement coming from down, with the help of Sufi movement coming from west, finally that resulted in कि Bhakti movement North India में आ, right? Then we are talking about the next important development is Sufism. The sons, यानी कि जो भक्ति मूवमेंट वाले पोएट सेंट्स हैं, they had much in common with the Sufis. So it is believed that they adopted many ideas of each other. इनके बीच में intermingling हुई थी, right? Sufis take on they were Muslim mystics, यानी कि बस अपने जो ध्यान में और मजे में रहते हैं, ठीक है, भगवान की भक्ति में, अल्लाह की भक्ति में, ठीक है, in a very simple way. They rejected outward religiosity and emphasize love and devotion to God and compassion towards all fellow human beings. अब यहाँ पर एक कहानी बताई जा रही है। भक्ति मूवमेंट क्यों आया, क्योंकि ब्राह्मणिकल मूवमेंट में ऑर्थोडॉक्सी थी।
सूफी मूवमेंट क्यों आया? क्योंकि इस्लाम में ऑर्थोडॉक्सी थी। Islam propagated strict monotheism or submission to one god in the 8th and 9th centuries. Different aspects of holy law, Shariat, and the theology of Islam developed. Islam gradually became more complex. Sufis provided an additional dimension and favored a personal devotion to God. कि भाई इतना मुश्किल ना बनाओ, हमें सिर्फ भगवान की सच्चे दिल से पूजा करनी है। They rejected the elaborate rituals and the codes of behavior and sought union with the Lord. तो डेवलपमेंट के कारण सेम है, जो इनका व्यू पॉइंट है वो सेम। Like the same poets, they also composed poems expressing their feelings, and a rich literature developed in prose, including stories and everything. Among the great Sufis of Central Asia, ये सेंट्रल एशिया के सूफीज हैं। बाद में हम बात करते हैं निजामुद्दीन औलिया, बख्तियार काकी, बाबा फरीद, ये सब जो इंडिया में है। तो सेंट्रल एशिया के सूफीज कौन है? गजली, रूमी, सादी, इनके बारे में तो आपने सुना भी होगा। Like the Nathpanthis, Siddhas and Yogis, the Sufis too believe that heart can be trained. They develop elaborate methods of training like zikr, भगवान का नाम जपते रहो, contemplation, sama, singing, dancing, discussion of stories, breath control, तो ये सब इन्होंने भी एडवोकेट किया। Thus emerged the silsilas, और इनका हुआ क्या कि ऑर्डर इमर्ज हुआ कि ये पर्टिकुलर सेंट है एंड इनको फॉलो करने वाला ये ऑर्डर है। धीरे धीरे एक पीर मुरीदी सिस्टम, दैट इज द, यू कैन से, जो टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशनशिप वो डेवलप हो गया एंड डिसिपल्स इस तरीके से डेवलप होने स्टार्ट हो गए। एंड इसको कहते हैं सिलसिलास डेवलप हुए, विच वाज स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी। ऐसा नहीं कि कोई बायोलॉजिकल जीनियोलॉजी है उसमें, बट स्पिरिचुअल, कि यहाँ से कनेक्ट हो गए यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से कनेक्ट हो गया, चलता रहेगा। जैसे हम कहते हैं ना घराना चलते हैं, उस तरीके से। Thus emerged the silsilas, a spiritual genealogy of Sufi teachers, each following a slightly different method of instruction and ritual practice. देखिए, एक कोई आएगा वो कुछ बोलेगा, दूसरा कोई आएगा और उसको लग रहा है कि मुझे भी कुछ बोलना है। सो वन कुड बी नेचुरल कि भी इनके थोड़े से व्यू पॉइंट्स डिफरेंट है। द सेकेंड थिंग कुड बी कि भाई ये जो बोल रहा है ये सही है, मैं भी इससे एग्री करता हूँ, लेकिन अगर ये जो बोल रहा है वो भी मैं ही बोलूंगा तो मेरी बात कौन सुनेगा, राइट? तो मुझे हल्का सा चेंज करना पड़ेगा इन माय मेथड्स, इन माय आइडियोलॉजी। तो उस तरीके से, मेरी ये जस्ट आपको समझाने के लिए एक तरीका है, उस तरीके से अलग अलग सिलसिलास डेवलप हुए, राइट? जिनका इंस्ट्रक्ट करने का तरीका, उनकी बातें एंड देयर एसोसिएशन विद द स्टेट, देयर एसोसिएशन विद द पीपल, वो थोड़ा सा अलग। जैसे कश्मीर में ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफिज्म डेवलप इन 10th and 16th century, established by Nuruddin Wali, also known as Nand Rishi. A number of shrines dedicated to Rishi saints can be found in Kashmir even today. ठीक है? A large number of Sufis from Central Asia settled in Hindustan from 11th century onwards. 11th century onwards आने शुरू हो गए थे। 11th century दैट टाइम जब गजनी का भी अटैक हो रहा है, ठीक है? तो उस अटैक के कारण अब अपॉर्चुनिटी खुल गई है, एंड अपॉर्चुनिटी खुली तो दे स्टार्टेड कमिंग। This was strengthened with when Delhi Sultanate was established. Sufi centers developed. चिश्ती सिलसिला became the most influential one. And उनके टीचर्स कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली। तो ये सब आपको याद रखने हैं। ये और ज्यादा डिटेल में है थीम 2 में, और यहाँ पर हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि ये तो बड़ा मुश्किल है याद रखना। ठीक है, मुश्किल है तो है, लेकिन आपको याद रखना है, क्योंकि ये एरिया यूपीएससी का फेवरेट रहा है हमेशा से ही। एंड एनसीईआरटी में तो हमें करना है, एज सिंपल एज दैट, राइट? अब ये सेंट्स आ गए तो ऐसा तो नहीं है कि भाई ये ऐसे घूमते रहेंगे, कहीं तो रहेंगे ना, राइट?
They held their assemblies in the kankhas or hospices, उनके रहने की जगह. Devotees of all descriptions, including royalty and nobility and ordinary people, they came to visit these Sufi masters, discuss with them, उनकी बातें सुनना. ठीक है. Even बड़े बड़े राजा लोग भी इनसे मिलने आए थे. तुगलक हो, ठीक है, चाहे वो जहांगीर हो, चाहे वो अकबर हो, चाहे वो औरंगजेब हो, ये सब इनसे मिलने आते थे. They discussed the spiritual matters, sought the blessings of the saints in solving the worldly problems. या फिर attended their music and dance sessions. Right? People contributed towards Sufi. People attributed Sufi masters with miraculous powers. कि भाई इनके पास कुछ है जो हमें हील कर सकते. The tomb or दरगाह of a Sufi saint became a place of pilgrimage. Right? तो वो जो टोम है इन itself वो दरगाह है, वही लोगों का एक विजिटिंग सेंटर बन गया धीरे 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 धीरे. राइट. ये जलालुद्दीन रूमी की बात की गई है, बस याद रखना ये थे कौन. वो सूफी पोएट फ्रॉम इट. नाउ नेक्स्ट द डिस्कशन इज, जस्ट अ सेकंड. ठीक है, तो आई एक्सप्लेन यू कि नंबर वन साउथ में क्या डेवलपमेंट हुआ, नंबर टू नॉर्थ में क्या डेवलपमेंट हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ नाथ सिख्स एंड द सिद्धपंथीज एंड योगाचार्य और उनके तरीके से. ठीक है. थर्डली सूफिज्म का डेवलपमेंट हमने देख लिया. एंड इन सब से कंबाइन होके जो डेवलपमेंट फाइनली हमें 13th सेंचुरी में मिला नॉर्थ इंडिया में, दैट वाज द भक्ति मूवमेंट ऑफ द नॉर्थ इंडिया. तो न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया. The period after the 13th century saw a new wave of bhakti movement in North India. This was an age when Islam, Brahminical Hinduism, Sufism, various strands of bhakti and Nathpanthi, Siddhas and yogis influenced one another. New kingdoms were emerging, and people were taking on to new professions. They thronged to listen to these new things. Right? इस कारण से बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, कल्चरल आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, and इस कारण से नॉर्थ इंडिया में आपको भक्ति मूवमेंट देखने को मिलेगा. यहाँ पर इन्होंने बात की चैतन्य देव की. ही वॉज अ भक्ति सेंट इन बंगाल. भक्ति सेंट फ्रॉम बंगाल. ही wanted devotion to, or he popularized devotion to Krishna Radha, engaged in ecstatic dancing and singing. इनके ऊपर यूपीएससी ने डायरेक्ट मीन्स में सवाल पूछे, राइट, कि भाई चैतन्य देव क्या करते थे. ऑब्वियसली इसमें इतना मटेरियल नहीं है कि मेन का सवाल हैंडल कर पाओ, लेकिन फर्स्टली कुछ बेसिक फीचर्स ऑफ बुद्ध भक्तिज्म. ठीक है. सेकेंडली इनके बारे में कुछ बेसिक फीचर्स, प्लस अगर आप अपने रेफरेंस सोर्स से याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात होगी. राइट. अदरवाइज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी से बार 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 घुमा के किसी ना किसी तरीके से पूछता ही रहता है. Some of them like, ये बात हो रही है about the bhakti movement in North India. Some of them like Kabir and Baba Guru Nanak rejected all orthodox religions. तो इनको बोला जाता है निर्गुण. Others like, इनको बोला जाता है सगुण, कि ये किसी फॉर्म ऑफ एक पर्टिकुलर भगवान में विश्वास रखते हैं कि उसकी भक्ति करो. ये जनरली कहते हैं कि भक्ति करो. Others like Tulsidas and Surdas accepted existing beliefs but wanted to make them accessible to all. Tulsidas conceived a god in the form of Ram. Tulsidas composition Ramcharitmanas was written in Avdi. तो obviously ये गाने गाते थे, लिटरेचर लिखते थे in the regional languages, right?
नाउ यहाँ पर ये मैप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। यहाँ पर फर्स्ट योर वर्क वुड बी टू सी कि कौन से सेंट कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्क वुड बी सेंचुरीज कौन सी है इनकी अप्रोक्सीमेटली। थर्ड इंपॉर्टेंट वर्क वुड बी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, जो रूलर्स हैं हमारे, ठीक है, उनकी टाइमलाइन के साथ कौन से एसोसिएट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएंगे गुरु नानक, कबीर, दादू, मीराबाई, सूरदास, क्योंकि मुगल पीरियड के आसपास यही घूमे, राइट। तो इनका आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया लेना है कि कंटेम्पररीज किसके थे, ठीक है। जैसे गुरु नानक जी वॉज इन दिस एरिया, दादू वॉज इन दिस एरिया, साथ साथ इनकी सेंचुरी आपने नोट करते जानी। देखो, एज फार एज महाराष्ट्र इज कंसर्न, आई गेव यू दिस कोड JNET, ठीक है। तो अब देखिए JNET, ये क्रोनोलॉजी है यहाँ, राइट। नरसिंह मेहता का हमने पढ़ा था कि इन्होंने इसकी इनकी प्रेस की थी, तो रफली ये इसी के आसपास होंगे, ठीक है। रामानुजा के बारे में हमने पढ़ा था, ही वाज बिलोंगिंग टू 11th सेंचुरी, शंकरा वाज फ्रॉम 8th सेंचुरी। ये इनके बस नाम याद कर लेना कि ये इधर, राइट। बासवाना हमने पढ़ा था फ्रॉम 12th सेंचुरी, राइट। चैतन्य देव याद रखना कि जो ईस्ट में है वो दोनों 15-16 सेंचुरी के, ठीक है। तो ये दोनों 15-16 सेंचुरी के। Kabir also. So four important ones, they belong to 15-16 centuries. One is Chaitanya Dev, Shankar Dev, Guru Nanak and Kabir. ठीक है। बाकी आपसे जितने याद हो, जैसे मीराबाई एंड सूरदास, दे आर 16 सेंचुरी, ठीक है। तो जो याद हो जाए, दो चार याद रखना है ना, बट इंपॉर्टेंट इज इनको याद रखना है। फर्स्टली रीजन, सेकंड देयर टाइम अप्रोक्सीमेट सेंचुरी, thirdly if they were contemporaries with any important rulers, right? Question of devotion and literary work. Surdas, a devotee of Krishna, he composed Sur Sagar, Sur Saravali, and Sahitya Lahari. Contemporary was Shankar Deva Hassan. दिखाया ना यहाँ पे 15th century. So one Tulsidas, Surdas, and Shankar Deva. Right? Who emphasized devotion to Vishnu, composed poems and plays in Assamese. He began the practice of setting up namghars, जहाँ पर आप पूजा करो, और houses of recitation and prayer, जो आज तक कंटिन्यू, राइट। यहाँ पर शंकर देव के बारे में बताया गया। डू नॉट कंफ्यूज शंकराचार्य एंड शंकर देव। शंकराचार्य जो पहले वाले थे 8th सेंचुरी वाले, शंकर देव इज 15th सेंचुरी असम वाले। The essence of Shankar Dev's devotion came to be known as Ek Saran Naam Dharm. ठीक है, surrender, supreme surrender to the one. The teachings were based on Bhagavad Gita and Bhagavad Puran. He encouraged the establishment of satra or monasteries. जो सत्रिया डांस है, उससे ये आप एटमोलॉजी रिलेट करना। Establishment of सत्र और monasteries for transmission of knowledge. तो एक सिंपल सा आपका सवाल यूपीएससी पूछ सकते हैं, सत्र और monasteries या तो किससे कनेक्टेड है, या फिर उनका कोर एम क्या था। द कोर एम वाज ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। इस कॉम्पोजिशन इंक्लूडेड इन कॉम्पोजिशन कौन सी, कीर्तन घोष, राइट। और इनके अलावा कौन थे इन भक्ति सेंट्स में, दादू दयाल, ठीक है, इन द राजस्थान रीजन 16th-17th century, मीराबाई राजस्थान, रविदास। Mirabai was a Rajput princess into the married into Mewar royal family. Okay. Mirabai became a disciple of Ravidas, a saint from an untouchable caste. She was devoted to Krishna, composed bhajans, challenged the norms of the upper caste, became popular with the lower with the ordinary people of Rajasthan and Gujarat. A unique feature of all these saints was that they composed their works in regional languages, which became immensely popular, and they were handed down orally from generation to generation. यही कारण था कि why these saints became popular. जैसे ही आप लोगों के साथ उनकी भाषा में कनेक्ट करने लग जाओगे, rather you feeling कि भाई
ठीक है, मैं तो वही बोलूंगा जो मैं बोलता हूँ, ठीक है। If you want to connect with the masses, you have to identify yourself with the masses, ठीक है। So this is a song composed by Mirabai. Then the next is, मैं बताया था लास्ट में, they're discussing about कबीर and गुरु नानक जी। कबीर के रिगार्डिंग there is confusion कि भाई वो हिंदू थे मुस्लिम थे, but more or less accepted is he was a Hindu, but he was brought up by a Muslim जुलाहा और द वीवर फैमिली। क्योंकि कबीर इतने इंपॉर्टेंट हुए हैं, कबीर के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत इजीली मिल नहीं पाई, राइट। तो इसलिए कोई भी इंपॉर्टेंट होगा उसकी लेगेसी आप हमेशा क्लेम करना चाहोगे। द नॉर्मल योगीज वुड वांट कि भाई हम उनकी लेगेसी क्लेम कर लें, हिंदूज वुड वांट हम कर लें, मुस्लिम्स वुड वांट हम कर लें। तो अकबर की लेगेसी के रिगार्डिंग हमेशा ही एक यू कैन से टसल रही है, ठीक है। Kabir, who lived in 15th 16th century, brought up in a family of Muslim julahas or weavers, settled in or near the city of Banaras, तो बनारस के आसपास थे ये। We have little reliable information about his life. We get to know about his ideas from his verses called as Sakhis or Pads, sang by him, sang by wandering bhajan singers. They were later compiled in the Guru Granth Sahib, Panchwani and Bijak. याद रखना, Bijak was his own. गुरु ग्रंथ साहिब में काफी वर्क्स कंपाइंड हुए। तो गुरु ग्रंथ साहिब में आज आपको कबीर की बातें भी देखने को मिलती हैं। दिस इज वन ऑफ द कॉम्पोजिशंस ऑफ कबीर, ठीक है। क्या है आपको ज्यादा नहीं ध्यान रखना, ठीक है, याद रखना है। कबीर के बारे में थीम 2 में और बहुत ज्यादा बातें हैं, तो वहां पे भी देखिए, राइट। His teachings were based on कि भाई अगेन कि भगवान ने सारी चीजें जो उल्टी सीधी हैं, जो आपके रिचुअल्स हैं, उन्हें आप रिजेक्ट कर दो। बेस्ड ऑन कंप्लीट इंडीड वेमेंट रिजेक्शन, यानी कि कंप्लीट आउटराइट ऑफ ऑल ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारा कुछ ब्राह्मणिज्म में गलत है, ऐसा नहीं कि सारा कुछ जो इस्लाम डेवलप हो उसमें गलत है, बट जो जिसमें से सही था उनको कबीर एक्सेप्टेड एंड बाकी सबकी गलत बातें ही रिजेक्ट। Openly ridiculed all forms of external worship of Brahminical Hinduism and Islam, the preeminence of the priestly classes and the caste system. The language of his poetry was a form of spoken Hindi, widely understood. He also sometimes used cryptic language, which was difficult to follow. ये सब theme 2 में भी अच्छे से आया। He believed in a formless supreme God, and that the only path of salvation was bhakti or devotion. He drew his followers both from Hindus and Muslims. Right? Then Baba Guru Nanak. We know more about Baba Guru Nanak than Kabir. Right? Literature simple था, उनकी बातें ट्रांसफर हुई ओरली, ठीक है, तो इस कारण उनके बारे में ज्यादा था। He was born at Talwandi. He traveled widely and established a center at Kartarpur on the near river Ravi. ठीक है। Irrespective of what was caste, creed, or gender, his followers ate together in a common kitchen called langar. The sacred space was later known as Dhamsal, now known as Gurudwara. Before his death, उन्होंने अपॉइंट किया गुरु अंगद को, who was one of his successor or who was one of his follower. He named him as his successor. गुरु अंगद को लहना भी कहा जाता था। अंगद मीन्स, अंग मीन्स अ पार्ट, तो गुरु अंगद मीन्स अ पार्ट ऑफ बाबा नानक हिमसेल्फ, तो ऐसे याद रख लेना। फर्स्टली गुरु नानक, देन नेक्स्ट गुरु अंगद, ठीक। फिफ्थ वाज गुरु अर्जन। Guru Angad compiled the compositions of Baba Guru Nanak, to which he added his own in a new script known as Gurumukhi. So Gurumukhi is attributed to Guru Angad. Then later उसके बाद जो तीन आए, जो तीन गुरुज आए, ठीक है, उनकी compilations finally compiled हुई by Guru Arjan. The three successors of Guru Angad also wrote under the name of Nanak, and all of their compositions were compiled by Guru Arjan in 1604. The compilations were added the writings of Sheikh Farid,
Kabir, Namdev, Tegh Bahadur. In 1706, finally Guru Tegh Bahadur authenticated it and Guru Gobind Singh compiled it in the form of Guru Granth Sahib, and उसके बाद बोला गया कि ये ग्रंथ ही अब हमारे गुरु. The number of followers increased dramatically of Guru Nanak Dev Ji. They belong to a number of castes like traders, agriculturists, artisans, and इस तरह ऐसा क्यों हुआ कि गुरु नानक जी के फॉलोअर्स अलग अलग कास्ट से आ रहे थे या अलग अलग ऑक्यूपेशन से आ रहे थे? क्योंकि लाइक यू कैन से कि जिस तरह महाराष्ट्र के जो सेंट्स थे उन्होंने कहा था कि भाई ये रिनाउंसिएशन वगैरह में कोई नहीं है, आप अपने परिवार के साथ रहो, डिवोशन में रहो. इसी तरीके से ऑन सिमिलर लाइंस गुरु नानक देव जी ने कहा था कि ऐसा नहीं कि हमें बस सब कुछ त्याग टूक के बैठ जाना, खाली बैठ जाना. वी हैव टू बी प्रोडक्टिव एंड वी शुड बी डूइंग सम वर्क. ठीक है. गुरु नानक इंसिस्टेंस वाज दैट इट्स हिज फॉलोअर्स मस्ट Guru Nanak insistence that his followers must be householders and should adopt productive and useful occupations. Like they were expected to contribute to the general funds of community of followers. Then हमें पता है कि कैसे सिखिज्म वहां पर धीरे धीरे एक नए गुरु नानक इनिशियली he himself did not want to establish a new religion, right? बट वो धीरे 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 his followers and later on जो who were leading this thought process, उन्होंने अलग रिलीजन बना ली, right? By the beginning of 17th century, the town of Ramdaspur, Amritsar present, developed around the central Gurudwara called Golden Temple of today. It was virtually self-governing and modern historians refer to it as a state within the state. तो वो autonomous था काफी ज्यादा. जहांगीर को वो थ्रेट लगा. He ordered the execution of Guru Arjan Dev, fifth Guru. The Sikh movement began to get politicized. ठीक है, इस तरीके से politicization हुआ क्योंकि सिक्स वर इमर्जिंग एज अ थ्रेट टू मुगल्स. तो इस कारण से इनके बीच में पॉलिटिकल क्लैश हुआ. culminated in the development of Khalsa by Guru Gobind Singh in 1699 and Khalsa Panth became a political entity. तो उसके बाद गुरु गोविंद सिंह, then later बंदा बहादुर, उसके बाद रंजीत सिंह, और रंजीत सिंह के और बंदा बहादुर के टाइम में मोर और लेस मॉडर्न इंडिया में एंटर कर जाते हैं. The changing historical situation during the 16th and 17th centuries influenced the development of Sikh movement. हमें पता है. The teachings of Guru Nanak Dev had a huge impact on this. अब यहाँ पर बात की गई है गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स क्या थी. देखो, let me give you an example why NCERT is important. ये सवाल इस साल डायरेक्ट यूपीएससी ने GS4 में पूछा. He explained the teachings of Guru Nanak Dev Ji. राइट, तो किसी ने रफली भी एनसीईआरटी का आइडिया लिया होगा. ठीक है, मतलब प्रीलिम्स का टाइम अच्छे से पढ़ा होगा और मेंस के टाइम ठीक है अप्रोक्सीमेट एक बार पलट भी लिया होगा अगर एनसीईआरटी को. he would be in a better position to at least not be surprised by such question. तो गुरु नानक जी की टीचिंग्स क्या थी? वही वर्शिप ऑफ वन गॉड irrespective of caste, creed, gender. His idea of liberation was not that of a state of inert bliss. मैंने कहा ना कि घर में ऐसे नहीं कि बस बैठे रहो, but rather the pursuit of an active life and a strong sense of social commitment. He himself used the terms Naam, Dan, and Insan for right worship, welfare of others, and purity of conduct. His teachings were now remembered as Naam Japna, Keet Karna, and Van Chapna. Importance of right belief and worship, honest living, and helping. Thus, Baba Guru Nanak's idea of equality also had social and political implications. Social क्यों इस तरीके से, political क्यों क्योंकि that influence वो धीरे धीरे एक political movement में develop. Right. So we discussed the sixth chapter which is the Bhakti movement वाला chapter. This is very 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 important chapter and इसकी if जो एनसीईआरटी में गिवन है वो भी आपने इग्नोर नहीं करना है. प्लस जो थीम टू में इसके बाद फर्दर डिटेल्स होंगी वो भी हम डिस्कस करेंगे. दैट आल्सो शुड नॉट बी इग्नोर्ड बाय यू, राइट. So next we will be continuing with the
नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।